Function can be inline. Constructor cannot take the object. Constructor cannot take directly the object as an argument, means you can't pass by value to the constructor argument of the type class directly. But you can pass the reference to the constructor, means the address of the object. Types of constructors, the four types: default, parameterized, copy, dynamic. Default constructor that accepts no parameter is called as default. Even if a user doesn't add it, compiler adds it. Compiler added constructor. Parameterized constructor that takes the parameters, that can take argument. Default मतलब जिसमें parameters नहीं होते. Parameterized मतलब जिसमें parameters accept होते हैं. Example of parameterized constructor: copy constructor, used to copy the values of one object's attribute into the another object's attribute. Example program showing the implementation of copy constructor, where we copied the value of object A's ID attribute into all the three other objects. Operation of the copy constructor in that program, previous program. Dynamic constructors. Dynamic constructors we can have inside a class, where we will use the statements like new operator, and where we will have the dynamic allocation of the memory to the class members. So as in this example, you can see name is certain pointer variable inside the class, which is getting allocated memory dynamically for every separate object. What is the use of dynamic constructor, or the dynamic allocation of memory? So that whenever any object will be created, such dynamic constructors will be called, and they will be allocating the memory to the object's attribute as per their requirement, and not any extra vestige of memory will be there. So it is a good one for memory efficiency or proper use of the memory space. Constructor overloading: using more than one constructors in a class is known as constructor overloading. As in this example, you can see three constructors are defined in the same class. Add C1, C2, C3. The green colored constructor, explanation written in green box. Red colored constructor 2, explanation is written in red box. Black colored constructor 3, explanation written in the black box. First is the default constructor. Second one, as I can see, it takes two parameters, so it is a parameterized constructor. And third one, I can see that it is a copy constructor because it takes the objects class objects reference as an argument. Here we have shown for which object creation, which constructor will be called. Add A1, since it is not taking any argument, default constructor is called. Add A2 in bracket 10, 20, parameterized constructor is getting called. And what it is getting called means automatically invoked, okay, at the backside. And what will happen? They will initialize, this constructor will help the object to initialize its m and n value. For A1, it is 0. For A2, value of m 10, value of n 20. For A3 object, it is using the copy constructor. So this is going to be invoked automatically, and values of A2's mn will be copied into A3's mn variable, and hence A3's m value will be 10 and A3's n value will be 20, because A2's m and n values are 10, 20.
Some important point: when you overload the constructor, you must remember that if you are writing any other constructors other than default in your class, then it becomes mandatory to define that do nothing implicit constructor, because this time it is not going to be added by the compiler, because you have defined other constructors, then define this one also. Okay. But if there is no constructor in your class, not a single one, then the compiler adds it. Constructors with default arguments. We can have the constructors with default arguments where this value is going to be fixed whenever it will be invoked. The first example, where the real part will take 5.0 value and the second argument, that is image part, will take 0 value. Why? I have passed only one value. How the second value is getting decided? Because it is a default argument. In the second example, complex class से C2 object create किया है and I have passed two arguments. What will happen in this case? The real part will take 2.0 and image part will take 3.0. How come this happen? Because 3.0 will override the default value. This is possible. The ambiguity case with the constructors with default arguments is that you have to be careful if you are using these two forms in the same class. So never use these both forms together, or if you are using these both forms together, you will have to pass the argument to the default constructor. That you can do, because compiler will get confused which one to invoke. Because when there is a default constructor in the class written like this, default argument constructor in the class written like this, and as you create the object from such class a space small a, which one to invoke? Because the default constructor can be invoked here. ओके, नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, और ये जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है इस ये भी इन्वोक हो सकता है, क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में एक ही आर्ग्यूमेंट है और वो एक भी डिफॉल्ट है, मतलब पास करने के टाइम हम जीरो आर्ग्यूमेंट पास किए तो भी चलेगा, तो ये वैसे ही दिख रहा है इसमें जीरो आर्ग्यूमेंट है, तो ये करना है कॉल या ये करना है, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर आपका. ओके, सो बी केयरफुल बिकॉज इट विल जनरेट एम्बिग्यूटी इन द प्रोग्राम. Means the program will either stop at that point. Okay, let's just start the last topic of second unit, that is destructors. Okay, so as we have seen, constructor constructs the object, destructor destructs the object. मतलब कंस्ट्रक्टर अगर कोई चीज एक जगह पे प्लेस कर रहा है तो डिस्ट्रक्टर उसको निकाल लेगा वहां से. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं? दे अलॉट्स द means they construct the values for the data members of the object. So it actually creates the object inside the memory. But destructor releases the memory occupied by the object inside that program. Okay, so what we need to do, a good programmer must always write a destructor before ending the program. Okay, so the exactly opposite job of the constructor is done by the destructor. Destructor is also a member function. Okay, constructor is a member function. Destructor is also another function, but its name is also same as that of class, but it is preceded by a tilde. क्योंकि अगर नेम सेम है और ये भी मेंबर फंक्शन है तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो इसके लिए ये सिंबल आपको लिखना है, उसके सामने ये सिंबल दिख रहा है, इसको टिल्ड बोलते हैं, TILDE. ओके, तो दिस सिंबल is written in front of the destructor function, and whenever you write destructor function it is not having any return type. Please take down the notes, students. Okay. This is the simple example of the destructor. क्लास इंटीजर का डिस्ट्रक्टर ऐसे लिखा जाएगा, नाम वही होगा, सिर्फ यहाँ सामने टिल्ड सिंबल आ जाएगा, और क्योंकि ये फंक्शन है इसके सामने ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, और ये है इसकी एम्प्टी बॉडी. जब भी डिस्ट्रक्टर
इन्वोक होगा. ओके, सो व्हेन दे आर कॉल्ड, ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट. जैसे कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होते हैं, कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होते हैं, कंस्ट्रक्टर इन्वोक होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो क्लास का. मतलब जैसे ही आप मेन में, इनसाइड द मेन फंक्शन व्हेन यू राइट द स्टेटमेंट सच एज दिस ए, ओके, तो ये हुआ ना ऑब्जेक्ट क्रिएट, क्लास ए से ऑब्जेक्ट ए बनाया. तो इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, इन्वोक होते हैं ऑटोमेटिकली. ओके, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, तो रिमेम्बर, जस्ट लुक एट दिस पॉइंट. They are also invoked implicitly by the compiler upon exit from the program or block or function to clean up the storage that is no longer accessible. You can write down this statement. Construct Destructors are invoked when certain block मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, एक ब्लॉक हुआ ये, ठीक है. अगर इसके अंदर कोई और ओपनिंग और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट हुआ तो वो दूसरा ब्लॉक, ठीक है. तो ये एक ब्लॉक हुआ, ठीक है. जैसे ये एक फंक्शन है, यहाँ से शुरू हुआ, इस कर्ली ब्रैकेट से यहाँ तक एंड हुआ. अगर इसके अंदर हम कोई और ऐसा ये क्रिएट करते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो वो एक स्कोप हो गया, ठीक है. या फिर एक पूरा प्रोग्राम होता है, तो वो जहां भी एंड होगा उस टाइम पे आपका डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा. ओके, जैसे ही कोई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और उसके अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो जैसे ही क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट इनकाउंटर होगा तब आपका डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और इसके अंदर बने हुए सारे ऑब्जेक्ट्स को वो रिलीज कर देगा, उनकी मेमोरी स्पेस रिलीज करेगा. One more important point that you must note down, that objects are destroyed in the reverse order of their creation. Okay, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड इन द रिवर्स ऑर्डर. मतलब अगर कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं A1 A2 A3 A4 1 2 3 4, तो डिस्ट्रक्टर्स नीचे से ऊपर. ओके, 4 पहले डिलीट होगा, 4 की मेमोरी स्पेस, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की मेमोरी स्पेस. ओके, सो यू कैन अज्यूम इट लाइक स्टैक. स्टैक पढ़ा है क्या आप लोगों ने? फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होते जा रहे हैं प्रोग्राम में, तो जो डिस्ट्रक्टर है वो कैसे डिलीट करेगा, पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला. ठीक, सो रिवर्स ऑर्डर. लेट्स टेक डाउन दिस पॉइंट. See why the destructor writing destructors is important, because जब हम प्रोग्राम में पॉइंटर्स यूज करते हैं ना, जैसे मेमोरी एलोकेशन के लिए हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, तो न्यू ऑपरेटर आ गया मतलब वहां पॉइंटर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी यूज्ड. बिकॉज न्यू ऑपरेटर क्या करता है, एक मेमोरी स्पेस अलोकेट करके देता है और उसका एड्रेस रिटर्न करता है कि यहाँ से मैंने मेमोरी अलोकेट करके दी है इस पर्टिकुलर अरे के लिए या फिर इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ जॉब ऑफ न्यू ऑपरेटर. तो वो एड्रेस रिटर्न करता है न्यू ऑपरेटर. अब ये जो एड्रेस है इसे स्टोर करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंटर लिखते हैं, पॉइंटर वेरिएबल. तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ना, आपके पॉइंटर वेरिएबल हमेशा किसी ना किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं. अगर आप एक बार प्रोग्राम के स्कोप के बाहर आ गए तो ये पॉइंटर वेरिएबल को आपको एक्सेसिबल नहीं रहते. ये कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, वो मेमोरी स्पेस अब गई आपकी, वो ऑक्यूपाई भी हो गई और आप एक बार प्रोग्राम के बाहर आ गए तो अब वो चीज एक्सेसिबल भी नहीं है. मतलब ये जो मेमोरी स्पेस है आपकी अभी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकती, ये अभी ऑक्यूपाइड मेमोरी हो गई. इसीलिए सभी पॉइंटर्स ने जितनी जितनी मेमोरी अलोकेट की है उन सब पॉइंटर्स से उनकी उनकी मेमोरी रिलीज करवा के लेना जरूरी है बिफोर एंडिंग योर प्रोग्राम. इसीलिए हमें डिस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है प्रोग्राम में. तो अगर हम डिस्ट्रक्टर या डिलीट जैसे ये स्टेटमेंट्स जो है, जैसे डिलीट भी आपको पता है क्या करता है, रिलीज करता है डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी. तो डिलीट के जो स्टेटमेंट्स है आप उनको डिस्ट्रक्टर में इंक्लूड करो और फिर ये क्या करेगा, ये ऐसे पॉइंटर्स की जो मेमोरी स्पेस एलोकेटेड है उस सबको रिलीज कर देगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई the pointers may go out of scope once your program ends, so you must write the destructors. Okay, क्योंकि अगर आप एक बार आउट ऑफ स्कोप आ गए तो डिस्ट्रक्टर कुछ नहीं कर सकता. इसलिए हमें क्या करना है, आप डिस्ट्रक्टर के अंदर उसकी कोडिंग लिख दो कि ये पॉइंटर्स की मेमोरी स्पेस हमें रिलीज करनी है. सो इट विल बी रिलीज प्रॉपरली एंड दिस मेमोरी स्पेस रिलीज फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम यूज. तो इसे बोलेंगे हम मेमोरी यूटिलाइजेशन. ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा ये करते हैं. यहाँ पे
count. Count is equals to, okay. See, this program is visible to you, okay. अब ये जो डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है इसमें आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर कहाँ कॉल हो रहा है और डिस्ट्रक्टर कहाँ कॉल हो रहा है. एम आई ऑडिबल? यस, हेलो Yes, एवरीवन. ma'am. Okay, just Yes, sir. look at this program. So we will start with hash include IOStream using namespace std. I have declared one global variable here, that is int count is equals to 0. What is the specialty of global variable? That it is accessible to all or inside all the components of this program and can be changed by everyone. Okay, so the global variable I'm going to use, and we have written class alpha. Name of my class is alpha. Inside the alpha class, I have declared two components. One is constructor and second is destructor. आपने कैसे पहचाना यहाँ पे? आप यहाँ देख सकते हो क्लास का नाम है, ठीक है. तो ये हुआ पहला कंस्ट्रक्टर और ये इसकी बॉडी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. उसके बाद ये है आपका डिस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके सामने टिल्ड सिंबल है. ओके, सो दिस इज योर डिस्ट्रक्टर and this is the body of the destructor. So what we will do, we will manipulate the values of this count variable. And let us see when the object creates how it is getting incremented, and when the object is coming out of this or the object scope is ending, then how destructor is getting. तो इसमें बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है. कंस्ट्रक्टर के इनसाइड हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, and we will print number of object created in front of that the current value of count. मतलब ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ प्रिंट है. डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक कोड लिखा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड इसका नंबर पहले प्रिंट करेगा, ठीक है. मतलब यही काउंट यहाँ प्रिंट होगा जो करंट वैल्यू होगी काउंट की, और उसके बाद वो काउंट माइनस हो जाएगा, मतलब डिक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है. मतलब हम इसमें ये शो करना चाहते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टेड उसका नंबर आना चाहिए कि इस नंबर का ऑब्जेक्ट बना, या फिर अभी ये ऑब्जेक्ट इतने ऑब्जेक्ट बने हैं क्लास में. जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हमें ये पता चलना चाहिए कि अभी प्रेजेंटली कितने ऑब्जेक्ट क्लास में है, ठीक है, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली डिस्ट्रॉय हुआ है. इसके लिए हमने ये कोड लिखा. Basically, whenever constructor will invoke for the object, it will increment the value of count variable by 1, and whenever destructor will invoke for the object, it will decrement the value of count by 1. ठीक है, समझ में आया? सिर्फ इतना समझो कि कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा ऑब्जेक्ट के लिए तो काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, और डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो काउंट की वैल्यू 1 से सब्सट्रैक्ट होगी. नाउ जस्ट लुक एट द मेन फंक्शन. एंटर मेन मीन्स यहाँ पे इसलिए ये चीज लिखी है क्योंकि आपको ब्लॉक समझ में आए. अभी हम मेन फंक्शन में है, तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक इसका स्कोप है, ठीक है, मेन फंक्शन. अब मेन फंक्शन के अंदर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, द फर्स्ट 4 ऑब्जेक्ट्स अल्फा a1 a2 a3 a4. Okay, so as soon as you write these statements, what is going to happen? The constructor will invoke for each of the object. Okay, and after that we will write some one more block. ये इसलिए लिखे हैं ब्लॉक्स क्योंकि आपको समझना चाहिए कि समझ में आना चाहिए कि डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली कहाँ इन्वोक हो रहे हैं, इसलिए मैंने ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक है. तो आप सिर्फ ये ऑपरेशन मुझे बताना कि काउंट की वैल्यू कब क्या होगी, ये आपको आंसर करना है, ठीक है. मैं आपको ये कोडिंग पहले समझा देती हूँ. एंटर में वी विल क्रिएट 4 ऑब्जेक्ट्स, then one statement will be printed, enter block, because this is second block. Inside the block I am going to create one new object, that is a5. उसके अंदर और एक दूसरा ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक खत्म होने के बाद मेन फंक्शन में ही दूसरा ब्लॉक. सी आउट एंटर ब्लॉक 2.
अल्फा A6। तो हमारे इसमें टोटल जो आप देख सकते हैं, एक है मेन फंक्शन का ब्लॉक, ये दूसरा है एक ब्लॉक 1 और एक है ब्लॉक 2 नाम से। ऐसे 3 स्कोप है हमारे मेन फंक्शन में। ओके, एंटर ब्लॉक 2 अल्फा A6, मतलब यहाँ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास अल्फा से, एंड देन री एंटर मेन, क्योंकि अगर हम इन दोनों ब्लॉक से बाहर आ गए हैं मतलब हम वापस मेन में आ गए हैं, मेन फंक्शन में, इसलिए यहाँ टाइप किया री एंटर मेन एंड देन रिटर्न 0। आप यहाँ देख सकते हो हमने कहीं भी किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है तब वो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब आप यहाँ आउटपुट पे फोकस करो। सबसे पहली लाइन जो आपके प्रोग्राम में प्रिंट होगी दैट इज एंटर मेन, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन करेंगे, एंटर मेन। देन व्हाट इज दिस फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटेड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, ये कैसे आया? बिकॉज as soon as you create अल्फा A1, तो A1 के लिए ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ। तो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम, तो वो क्या कर रहा है, काउंट की वैल्यू +1। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ काउंट? 0। what it will become after invoking the constructor for A1, it will become 1। ओके, अभी आपकी वैल्यू हो गई 1। इसके लिए A1 जब इन्वोक हुआ तो A1 से क्या हुआ, काउंट प्लस प्लस हुआ, तो काउंट 0 से हो गया 1, और इसलिए यहाँ प्रिंट होके आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1। इसलिए यहाँ पहली लाइन जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1 है। सिमिलरली फॉर A2, जैसे ही A2 ऑब्जेक्ट यहाँ एनकाउंटर होगा मतलब क्रिएट होगा, तो फिर से इसके लिए ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, इससे काउंट की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट की, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टर A2 के लिए कॉल हो रहा है तो सेकंड टाइम काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन। तो 1 से वैल्यू होगी 2 और ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2, ठीक है। फिर आएगा A3। A3 जैसे ही क्रिएट होगा फिर से ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कौन इन्वोक होता है, कंस्ट्रक्टर, ओके। तो ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, फिर से यहाँ काउंट की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3, और ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ काउंट इज 3, तो 3। इसके बाद है A4 ऑब्जेक्ट क्रिएट। A4 ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होगा फिर से कंस्ट्रक्टर इन्वोक for A4, so count will be incremented by 1, and now the new value of count is 4, and hence the statement will be printed as number of object created, ठीक है। तो सिर्फ आपकी इस इतनी लाइन का आउटपुट है ये 4 में, ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ अब तक, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप नहीं गया है, और ये चारों ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो ये इनसाइड मेन है, मतलब इनका स्कोप अभी भी चल रहा है, ठीक है, ये इनसाइड मेन के अंदर लिखे है ना, इनको किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा है, तो ये अभी इनका स्कोप कंटिन्यू है। Now, next line printed in this program is enter block 1। आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया, मतलब आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो बेसिक चीजें है वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ लिसन केयरफुली। Now, as soon as you enter this block, what is the first printing statement? Enter block 1, इसलिए यहाँ print हुआ है enter block 1। Now see, alpha A5, we have created a new object inside this block, okay, inside this block you have created new object। Now what was the value of last value of count? यहाँ तक जब हम आ गए थे तो count की वैल्यू 4 है हमारे पास, ठीक है। अभी हम ब्लॉक 1 में है, यहाँ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो ये नया ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा व्हाट इट विल डू, इट विल इन्वोक द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है आपके प्रोग्राम में, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है 1 से, अभी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5, और ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो, अब हमारा ये करली ब्रैकेट एनकाउंटर हो गया, क्लोजिंग करली ब्रैकेट, जैसे ही ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट एनकाउंटर हो जाता है आपका जो ऑब्जेक्ट है इट गोज आउट ऑफ स्कोप, मीन्स योर ऑब्जेक्ट स्कोप इज गोइंग टू एंड हियर, मीन्स यू कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट अप टू दिस पॉइंट ओनली। ये मीनिंग हुआ उसका, ऑब्जेक्ट का स्कोप एंड होना मतलब,
इसलिए जैसे इस ऑब्जेक्ट का स्कोप एंड हो रहा है, इसकी मेमोरी स्पेस रिलीज करना जरूरी है। इसलिए यहाँ जो हमने प्रोग्राम में डिस्ट्रक्टर लिखा है टिल्ड अल्फा, ओके, सो दिस डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड एट दिस पॉइंट। जैसे ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट एनकाउंटर होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ ये प्रिंट हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 5। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था वही ऑब्जेक्ट 5 नंबर का अभी डिस्ट्रॉय हुआ है, ये इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि हमारा 5 में से एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है या उसकी मेमोरी स्पेस रिलीज हो गई है, अभी हमारे पास सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट बचे हैं, इसलिए हमें काउंट को भी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस स्टेटमेंट के बाद हमने लिखा है काउंट माइनस माइनस, लिखा। इसलिए यहाँ 5 से वैल्यू फिर से हो जाएगी 4, ओके, क्योंकि ये स्कोप एंड हो गया है। अब हम दूसरे ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं, ब्लॉक 2। सी हियर, so the present value of count is 4 after execution, after this point काउंट की वैल्यू 4 है। अब हम इस ब्लॉक में जाएंगे, एंटर ब्लॉक 2। ये देखो ये स्टेटमेंट प्रिंट हुए। अब इसमें तुमने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अल्फा A6, फिर से वही चीज प्रोसेस अप्लाई होंगी यहाँ पे। जैसे ही आप A6 क्रिएट करोगे तो काउंट की वैल्यू 4 से हो जाएगी 5, और ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5। उसके बाद जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होगा, ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा फॉर A6, और यहाँ प्रिंट होके आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 5, क्योंकि ये फिर से आपका A5 के बाद ये 4 ऑब्जेक्ट हो गए थे, फिर से आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब हो गए 5 ऑब्जेक्ट। तो फिर से ये आपका अगला 5वां ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसको भी आपने डिलीट कर दिया, मतलब उसकी भी मेमोरी स्पेस हमने रिलीज कर दी। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड यहाँ पे आएगा 5, ओके, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ काउंट। इसके बाद हम का नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट है दैट इज काउंट माइनस माइनस होगा, इसलिए 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 5, और उसके बाद आपका काउंट माइनस होके 4 हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ काउंट, 4। अब देखो आपका ये स्कोप भी एंड हो गया, ये स्कोप भी एंड हो गया। अब आप कौन से स्कोप में हो, फिर मेन फंक्शन के। ये जो दिख रहा है सबसे बाहर वाला स्कोप, ओके, आउटर स्कोप, दैट इज मेन। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर री एंटर मेन। अब देखो जैसे ही हम री एंटर करते हैं मेन फंक्शन में, और यहाँ आ गया आपका स्टेटमेंट रिटर्न 0 एंड देन क्लोजिंग करली ब्रैकेट, मतलब अभी इन ऑब्जेक्ट सब ये जो A1 A2 A3 A4 है, इनका स्कोप अभी एंड हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया, ये पॉइंट सबने नोट डाउन किया, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर क्रिएशन। तो यहाँ क्या होगा, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाए A1 A2 A3 A4, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट अगर इस ऑर्डर में बने हैं तो ये डिस्ट्रॉय कौन सी ऑर्डर में होंगे, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा वो होगा A4, ठीक है, इसलिए इसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड आएगा 4, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू आपकी काउंट की 4 थी, और उसके बाद काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये 4 से हो जाएगा 3। देन A3 के लिए डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और वहां ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 3 एंड देन काउंट डिक्रीमेंटेड बाय 1। A2 के लिए डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 2, काउंट वैल्यू डिक्रीमेंटेड बाय 1। A1 के लिए डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 1, काउंट वैल्यू डिक्रीमेंटेड बाय 1, तो बैक टू द 0। Okay, have you understood this program? What you have to remember in this program, whenever the constructor, whenever you are writing the constructor and destructors in your program, you must take into account the invocation time. Okay, see, whenever you are creating the statements like creation of object alpha A1, the constructor will be invoked.
But as soon as the scope of that particular object will end, whatever inside, if it is even inside the block or even inside some function, okay, then or that particular scope, whenever that scope for that object will end, the destructor will be called automatically. Constructor will be called when the object created, and destructor is called when the object scope ended. Okay, understood? I hope you have written this program. Yes, at least say yes or no. Okay.